Hello my dear students, welcome to all of you in today's class. Dear students, today we are just going to describe from biology section, that is chapter 2. We are just going to start chapter 2, tissues. It's very interesting topic, and we have learned one chapter that is fundamental unit of life, that is cell. So dear student, there is a relation, correlation between the chapter first and second. Already you have learned chapter first, so you will not face any problems there. That is going on. Yes friends, as you know that our organ systems, whatever the organ systems, there are so many organ systems working, performing different functions. So our organ systems, if we understand the organ systems, so first of all, what is the necessary things? So dear students, from cells, tissues develops, tissues makes organ systems, organ makes organ systems, and organ systems makes an organism. So there is a basic functions of tissues. So tissues is studied through the histology. Histology is the branch, is the methods through which we study. Histo means होता है tissue, logo मतलब होता है study. If you want to describe the histology, then histo means tissue और logo means study. So dear students, if you want to know tissues होता क्या है, tissue क्या होता है, so if you want to describe tissue is a group of cells, similar in structure that works together. A group of cells similar in structures that works together to perform a particular functions from a tissue. Particular function को जो परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू. गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब है सेल्स का ग्रुप, सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शंस फ्रॉम अ टिश्यू. वही टिश्यू फॉर्म करते हैं. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट ह्यूमन बीइंग्स is a multicellular organisms, and you have studied that there are some kinds of species which are considered as a single cellular. मतलब होता है देखिए unicellular organism, just like amoeba and paramecium. So can you think about that? Paramecium and amoeba performs all activities, just like all types of process, just like feedings, respirations, excretions, all types of functions are performed by amoeba as a unicellular organisms. Only single types of cells, only one types of cells are responsible in performing the function. So only single cell perform the functions. But in case of human beings, multicellular organisms, which are multicellular organisms, the multicellular organism performs different functions by group of cells. Group of cells makes tissues, and tissues makes organ systems, and organ systems makes an organisms. So organisms means performs the different function. That is the functions, just like human beings में digestive system, muscular system which contract या repels. तो muscular systems, कार्डियक मसल्स जैसे हमारे होते हैं, किडनी, ओके, ऑर्गन सिस्टम. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स which I am telling you. These organ systems perform different functions. So we can say that these organ systems performs specific functions by combination of many kinds of cells having structure in same. So if we want to know, if we correlate the tissue to the group of cells similar in structures that works together to perform a particular functions from a tissue. So dear students, in this video we will learn about the tissues. और इस tissues को दिया नाम किसने है, बाइचैट 1972 में इन्होंने इसको कॉइन किया है tissues को. So tissues chapter is very important. तो लेकिन tissues को जो हम देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमारे दोनों होते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और
एनिमल्स की बात करें या प्लांट की बात करें, बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोनों हमारे ये क्या है, लिविंग है। तो हम दोनों के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज, ठीक है, प्लांट टिश्यूज। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज के बारे में फिर हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट plant tissues, if you want to differentiate between plant tissue and animal tissues, we find many dissimilarities between them. Plant tissues have large number of tissues, okay, plant tissues are larger, okay, in numbers. Animal tissues have low in numbers. As you know that we can say that plant tissues cannot perform some other types of works, just like locomotions. If you want to move from one place to another, so we can move as a living beings. Plant can perform its own foods, storage of food by the process of photosynthesis reaction. So plant can make their own foods, but animals cannot do. Animal has to move from one position to another position for energy. तो अब ये बताओ दोनों में एनर्जी किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी? इन दैट केस ह्यूमन बींग्स को अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी because we have to perform the works. That is the reason. तो अब प्लांट टिश्यूज को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो प्लांट टिश्यूज को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो प्लांट टिश्यूज को दो कैटेगरी में बांटे, पहला मैरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू में तीन कैटेगरी है, दैट इज एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल क्या होता है? एपिकल का मतलब जैसे प्लांट होते हैं तो प्लांट का जो टिप होता है ऊपर सबसे उसका टिप, ठीक है, तो टिप में जो सबसे ऊपर होता है एपिकल का मतलब होता है टिप। टिप में जो ग्रोथ होता है, जैसे बड है, प्लांट ऐसे ऐसे आपका है, तो इसका जो ऊपरी ये टिप है दैट इज द एपिकल, ओके, दिस इज द एपिकल और इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट्स, ओके। देयर इज अनदर पॉइंट इज लैटरल। तो लैटरल मीन्स क्या होता है कि लैटरल जहां से आपका प्लांट का लैटरल जहां से प्लांट का आपको लीव्स जहां से निकलती है, लीव्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दैट पार्ट इज द लैटरल, ओके, लैटरल मेरिस्टेम हम कह सकते हैं उसको, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कैन बी लोकेटेड हियर जस्ट लाइक दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। इफ देयर इज अ लीव्स इन दैट साइड, so this side leaves is there, then this portion is the lateral and increases the thickness of the plants. ये क्या करता है? प्लांट्स स्टेम के थिकनेस को बढ़ाता है। इंटरकैलरी प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ स्टेम। स्टेम का डायमीटर क्या करता है? इंक्रीज करता है। डायमीटर का मतलब होता है डायमीटर के इंक्रीज करता है, जस्ट लाइक stems of a plants diameter, this types of diameters increases, उसका डायमीटर धीरे धीरे क्या होता है? मोटा होता जाता है। तो डायमीटर इंक्रीजेस एंड प्लांट्स बिकम्स हार्ड। इससे क्या होता है कि प्लांट को सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट इज दैट परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे बात आती है मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का मतलब है कि सेल्स का जो ग्रोथ हो रहा है, जो सेल डेवलप हो रही है प्लांट में, आप मेच्योरिटी के बाद, आफ्टर मेच्योरिटीज द प्लांट सेल्स गेट्स matured and we can say that this is the permanent tissues. Permanent tissues can be classified into simple tissues and complex tissues. परमानेंट टिश्यूज को हम लोग दो में बांट सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जैसे नाम से ये इसका सिंपल टिश्यूज का मतलब है कि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है, यानी ये देयर इज सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स। कहने का मतलब है अगर एक सेल्स हमारा जो स्फेरिकल है तो दूसरा आपका ओवल शेप में भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। दिस टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मीन्स देयर इज अ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेम टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब है कि उसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स में भी देयर में भी सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर वो हमारा कोन है तो कोन टाइप का ही रहेगा, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर ही रहेगा। दैट इज द सिंपल टाइप्स ऑफ द सेल्स। सिंपल टाइप्स ऑफ सेल्स
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सिंपल टाइप्स ऑफ सेल्स वी विल वांट टू स्टडी अबाउट दैट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा इसमें क्या होता है कि पैरेन्काइमा में क्या होता है, पैरेन्काइमा में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स थोड़ा ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स आर मोर, इट मीन्स इट कैन स्टोर, सो दैट इट कैन स्टोर, जब होल होगा इसमें तो इट कैन, इसमें क्लोरेन्काइमा भी होता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लोरेन्काइमा इसके दो और हम इसको डिवाइड कर दिए अच्छे से समझने के लिए। पैरेन्काइमा कैन बी एक्सप्लेन्ड फर्दर मोर। पैरेन्काइमा में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, देयर इज अ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो इसमें क्या होता है, जब लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस होगा इसमें आपका क्लोरेन्काइमा भी होता है, यानी प्लांट्स कैन स्टोर फूड, बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विच आर प्रेजेंट। और ये क्या कर सकता है, फूड प्रिपेयर कर सकता है, कैन प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, दैट इज क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या होता है कि जितने वाटर प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट में क्या होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैविटी या होल्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज या होल्स, लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज plant is provide supports to plants, leaves float on the waters. Inside the waters it supports plants to float. इससे क्या होता है, प्लांट्स फ्लोट करते हैं, जो लीव्स होती हैं वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। इन केस ऑफ वाटर प्लांट जितने भी होते हैं उन सब में क्या होता है कि कैविटी जब ज्यादा होगी, होल ज्यादा होगा, तो इससे क्या होता है कि स्पॉन्ज होगा, उससे प्लांट्स लीव्स क्या होती हैं, पत्तियां फ्लोट करती रहती हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज अ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा आल्सो प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स जब आपके ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स। प्लांट कभी कभी क्या होते हैं कि बेंड करते हैं, बेंड करने के बाद अगर ऐसे बेंड कर गए प्लांट्स, तो फिर प्लांट्स का जो बेंडिंग है, अगर मान लो प्लांट्स ऐसे बेंड कर गए तो ये जब इसका मूवमेंट इधर हो जाएगा प्लांट्स का ऐसे, तो फिर प्लांट्स कैसे उधर जा पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथन। इससे क्या होता है कि प्लांट को वो स्ट्रक्चरल बैलेंस प्रोवाइड करता है, इससे प्लांट सीधा स्टेट में खड़े रहते हैं। दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आल्सो रिलेट्स टू द क्लोरेनकाइमा, यू कैन do the same function. There is a and another is a complex tissue की बात करें तो complex tissue में अभी आपने देखा simple tissue, तो simple tissue are the made of similar kinds of cells, okay, but complex means there is a complexity, means अगर कोई हमारा cells triangular shape में, ठीक है, तो दूसरा हमारा oval shape में भी हो सकता है। There is a not uniformity in the cells, means these tissues are made by different kinds of cells, different kinds of structure of the cells, that is the complex tissue। और complex tissue में आपको आएगा फ्लोएम और जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम से क्या होता है कि वाटर का कंडक्शन होता है, वाटर कंडक्ट्स फ्रॉम प्लांट रूट से शूट सिस्टम, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल। ये रूट से शूट्स और ये पूरा प्लांट वाटर पहुंचता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कंडक्ट्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर्स फूड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट एंड शूट टू अदर ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स के और ब्रांचेस तक पहुंचता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड वाटर्स। सो यहाँ पे फ्लोएम से क्या जाता है, देखिए फ्लोएम से फूड मटेरियल्स मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, अब यहाँ पे जाइलम दैट इज यूनिडायरेक्शनल बट फ्लोएम इज द बाईडायरेक्शनल। ये बाईडायरेक्शनल मल्टीडायरेक्शनल, इट कैन मूव फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द फ्लोएम।
तो फ्लोएम और जाइलम के बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्लांट टिश्यूज. And another topic is here is if you want to move further from plant tissue to animal tissue, so before going to animal tissues you have to recall all the contents clearly given in your textbook. So dear students, today I have described about the terms tissues and kinds of tissues. में हम लोग आज किस पे डिस्कस किए थे? ओनली प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो टोटली बेस्ड ऑन द tissues which I have told you. Thank you students for watching this video.